Assalamu alaikum. Thank you all so much for coming. It means a lot. And पहले हम दुआ कर लेते हैं, but हाँ, just be careful. But I would like to say one thing first, that this is not a class where it's going to be like a monologue, and where I'm just sitting here and talking about a few things here. So I would really appreciate your input, and I would like it to be interactive so that I can also learn. ठीक है? So inshallah, let's start. पहले दुआ कर लेते हैं. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा अरिनल अशियाअ कमा हिया. ए अल्लाह, हमें चीज़ें वैसी दिखा जैसी कि वो हैं. अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह. ए अल्लाह, हमें सच को सच दिखा और उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और ए अल्लाह, हमें गलत को गलत दिखा और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा. अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा. ए अल्लाह, हमें फ़ायदा पहुँचाएँ इस इल्म से जो हम हासिल करें, और हमें वो इल्म सिखाएँ जिससे हमें फ़ायदा हो, और हमें इल्म में बढ़ाएँ. आमीन. रब्बि ज़िदनी इल्मा. ए अल्लाह, हमें इल्म में बढ़ा. आमीन या रब्बल आलमीन. So as you can see, the topic is why do we need religion. So आप लोगों का क्या ख्याल है कि रिलीजन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, या उसकी क्या ज़रूरत है. Is it really necessary? Is it really important in our lives? And if it is, then why? Would anyone like to comment? Yes. Because इससे हमें ना होप मिलती है. Okay. रिलीजन से पीस मिलता है, होप मिलती है. अदरवाइज जो एथियस्ट हैं वो उनका सुसाइड रेशियो इतना हाई है बिकॉज उनके पास होप नहीं है. ठीक है. और होप के साथ आपको सुकून मिलता है. फिर आपके प्रॉब्लम्स जो ट्रिगर करते हैं एकदम से आपके फेस पर आते हैं, आप थोड़े से रिलैक्स कर जाते हो कि यस देयर इज समवन. इफ आई कुडंट मेक श्योर कि मैं कुछ चीजें कर सकी अपने लिए, बट देयर इज समवन हु टेक केयर ऑफ ऑल द blunders of my life I did or other people did for me. Okay. That's my opinion. Okay, thank you. Anyone else? I think it's just something you fall back on Okay. unintentionally. Okay, so it's a support system? Mm-hmm. It's an unintentional support system because we're lucky to be born Muslim. in the realm of Islam. So yeah, or basically religious. word is inshallah, mashallah. But we don't, if one were to think कि हमें इस aspect की कोई knowledge ही ना हो, Mm-hmm. then I don't really know how one would feel. It would be a total void. So I think it's just Okay. it's just something there which we kind of So it's access like in our own way, in our own manner, so Okay. many times a day. so it's like a void or a vacuum which you feel is filled, and it's gives you support, and it's But like a I said, fallback. we've never experienced that void, so we don't know how it Okay, would be. It's just right. something which is It's there. always been there, part of our But it's a foundation that one needs. Right. To be survival. okay. I think it's like something that you can look forward to. If there's no solution, you say, okay, I can Mhm. turn to religion and it might solve my problems. Right. Okay, so it gives you Or support. same hope. Hope and support. Yes. And apart from the spiritual aspect of religion, I feel like it's something that would keep you morally and ethically correct subconsciously. Even like if you're doing something that you know is wrong, but like Mhm. subconsciously you think like my religion doesn't support this. But I feel like it's a way of to keep society together In or check? on track. Yeah, Good. basically like a law Okay. of society. if you Okay. put it that way. So it's like a moral check. Yeah. Okay. Mhm. Very, very nice. Yeah, Yes. I would say I think it brings actually discipline in our lives Mm-hmm. here in this world. Mm-hmm. So we think that we are on the right track. Okay. We believe that we are on the right track. Okay. And then it talks about hereafter as well. Mm-hmm. So it solves that world also. Mm-hmm. So I think in both worlds we believe that discipline is the right solution. The religion is the right solution. Right. So it's discipline in this world, and your hereafter is going to solve that. Okay. Anyone else? Yeah. Just to add to the point that both of them are saying, that it just brings order and system to our lives. Mhm. It's religion that tells us how to do things. For most of us, like she said, we're born into that, so we
I mean, that's what tells us how to, you know, what to eat, how to be, how to dress, and all that. So it gives a system and an order to our lives, I think. Okay. It's Very basically nice. a complete way of life, you know, it tells us how to deal with life. Basically. So you don't need to be here then. You know what all it's all about. Alhamdulillah. That's my elaboration. Okay, so basically, this is going to be a series of lectures where we will look at religion in a way that should be objective, and we will try and study the different schools of thought and their principles, so as to get an understanding of where they are coming from. Because in our society we are becoming, we're generally becoming intolerant of different perspectives, and especially religious perspectives, and we tend to judge and label, and unfortunately that has created a lot of disunity amongst the Muslims, because instead of uniting on the common factors, जो हमारा अकीदा है, जो हमारा जो basic हमारे beliefs हैं, वो तो सब सेम हैं, तो हम differences को highlight करके and we make that a sore point, and we fight over that, and we declare people non-Muslims, किसी को कुफर का फतवा लगा दिया, किसी पे शिर्क का फतवा लगा दिया. तो इंशाल्लाह हमारी ये एफर्ट होगी कि हम एक सिंपैथेटिक, एक हमदर्दाना अप्रोच के साथ हम बाकी फ़िरक़ों के प्रिंसिपल्स को देखें कि क्या वो where they are coming from. Are they basing their practice and their understanding and their inferences on Quran and Hadith, or are they basing it on something else? I mean, तो इससे इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें हमारे अंदर टॉलरेंस पैदा होगी. Because when you are not aware, when you have less knowledge, when you have studied religion from the viewpoint of just one understanding or just one school of thought, you tend to be fixed in your views, and you believe that anything else, any other interpretation is probably not right. So that becomes it leads to intolerance, it leads to rigidity, and we cannot understand the other person because our mind is closed, and we are only coming from that closed mindset, so we cannot understand what the other person is saying. We cannot hear the other person. It's almost like shutting that other person out. So you see, this is the effort that inshallah we will be progressing towards that, those lectures. But before that, I felt that it's important to understand, like we begin with religion. Okay, first of all, religion ki kya importance hai? I mean, do we really need it in our lives now in this day and age? I mean, as Muslims, we believe it's our duty to understand our faith, Islam, and for this purpose we study its primary sources. हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, और उसके principles को भी हम देखते हैं. If somebody is interested, they go further. You see, they study the principles कि कुरान की जो understanding है, जो तफसीर है, उसकी क्या principles हैं, किस basis पे इस आयत को इस तरह क्यों समझा गया, what is the principle behind it. So let's talk about religion first. So आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह. I'm very impressed. So you all have a very good understanding, and I think you feel that you're very clear about what religion does for you. So when you study the known history of philosophy, बहुत बड़े बड़े दिमाग गुजरे, बहुत बड़े thinkers गुजरे, जिन्होंने इस ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम सवालात किए और सोचा और अपनी अकल को बहुत इस्तेमाल किया. एंड ये सब चीज़ें देख के और पढ़ के ऐसे लगता है कि वो सब एक सच्चाई की तलाश में थे. दे वांटेड आंसर्स टू सर्टन वेरी फंडामेंटल क्रूशल क्वेश्चंस. ये इस तरह के सवाल हैं जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सोचता है, और these questions can be so crucial and so sort of imperative and important for a person कि वो उसकी तलाश में बहुत कुछ कुर्बान भी कर देता है. अगर आप बुद्धा की लाइफ के बारे में देखें या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में देखें, तो उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी इस सच्चाई के लिए.
और इस सच्चाई को जानने के लिए, जो उनकी वो एफर्ट थी, जो उनकी यानी ही वॉज लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ एज अ हैप्पीली मैरिड मैन. ही हैड मैरिड, his wife doted on him. He had a excellent reputation in his society, but there was still a yearning in him. He wanted to know. What did he want to know? He was not satisfied with what religion was offering him in that society. तो जब हम ये देखते हैं ये तलाश इंसान की, तो हमें ये नज़र आता है कि हर इंसान, जो बड़े थिंकर्स गुजरे, जो नबी आए, उन सब की ज़िंदगियों में हमें कॉमन जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि उनकी सच की तलाश. टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस लाइफ. एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? Those questions are related to the universe, the world around us. Those questions are related to understand what is behind this world, what is the purpose of this world, what is the metaphysics, and और उसके अलावा वो सवालात आपके अपनी ज़ात के बारे में भी होते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग. तो यूनिवर्स के बारे में मसलन क्या सवाल आते हैं जहन में कि हाउ डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड देन हैज इट बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस फॉरएवर, और डज इट हैव अ बिगिनिंग? Does it have a purpose? Is this universe eternal, or does it have an end? And then similarly, then metaphysics से related questions क्या आ सकते हैं कि does it have a creator who cannot be seen, but is there a creator? If there is a creator, then what is he like? And who is he? What is he like? What are his attributes? What are his qualities? Is he a conscious being? Is he one or more than one? What kind of relationship does he have with this universe? Does he control the affairs of the universe? Is he always in control 24/7? Is he micromanaging? Or has he just made it subject to certain laws and वो खुद ब खुद चल रहा है? जैसे एक इंसान, एक घड़ी साज ने घड़ी बना दी और उसने उसको छोड़ दिया. अब वो he is not interfering with the mechanism, right? And it's just operating on its own because all the system is in place. इसी तरह जब इंसान अपने आप को देखता है, अपने वजूद को देखता है, तो उसके अपनी बारे में भी बहुत से सवाल आते हैं कि एम आई फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर हैव आई कम फ्रॉम, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ, इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ, एंड सिमिलरली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, एम आई जस्ट दिस फिजिकल बॉडी और इज देयर अ सोल. एंड देन of course सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है कि what am I here for? If there is a purpose to my life, then what is it? What is it that I need to do? इसी तरह बहुत से और सवाल हैं. मसलन ये कि is man born free? Does he have free will? Or is his life predetermined? And he is just like he's like an arrow which is been released from a, what is that called? The bow, ठीक है? And he's just sort of being tossed around. And what is good and what is evil, and how are we going to determine कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है? कौन डिसाइड करेगा? इसी तरह are we going to define good and evil on the basis of our intellect and reason, or do we need some external guidance? And then if there is any external guidance, then how will we get it? Is it possible for human beings to create an ideal society? I mean, we're still, we've come a long way as humanity. We've evolved, from the day and age of slavery, where we are now. I think we've evolved, like we have a human rights charter and everything. But I mean, we are still, as far I would say, we're still really messing up things, So, is it possible to build an ideal society? And then and what would that society be like? I mean, it sounds like utopia, लेकिन वो society ऐसी हो कि जहाँ पे हर इंसान उसको resources available हों to develop and grow as he should, and कोई exploitation ना हो, strong इंसान जो है वो weak की exploitation ना करे, सबको उनके हकूक मिलें. सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रही, उससे कहीं ज़्यादा. सो if this is possible, then what will be the foundations on will this society be built?
ओके, सो व्हेन वी गेट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, या जैसे आप कह रही थी ना कि हमारा जो अकीदा बना हुआ है बचपन से, या एक हमारा एक व्यू होता है लाइफ के बारे में, एक फिलॉसफी होती है, एक वर्ल्ड व्यू होता है, तो वो जो वर्ल्ड व्यू या फिलॉसफी हमारी बनती है थ्रू आवर रिलीजन, थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, then that shapes our actions and behavior. Like you will read the Ayatul Kursi, ठीक है, and then you know that you have to dress a certain way, जिस तरह आप बता रही थी, and there's so many conditioning, and if you really trace back, तो वो सारा कहाँ से आ रहा है? वो आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी के बारे में आ रहा है. यानी आपको अगर आखिरत का अकीदा है, या अगर आप एक सर्टन किताब पे ईमान लाते हैं, तो आप फिर आपके एक्शंस को वो मोल्ड करता है, and that world view now will shape your personality and ultimately your character. अब इंसानों ने अगर हम केव मैन को देखें, केव मैन से जहाँ से इंसान की शुरुआत, जो एंड देन प्री हिस्टोरिक मैन ऑल्सो, जो कुछ मिलती हैं हमें रिमेन्स, उससे हमें ये नज़र आता है कि इनिशियली ह्यूमन बीइंग्स वर जस्ट ऑन सर्वाइवल लेवल, एंड उनका तो सुबह से लेकर रात तक बस उनका जो आई थिंक जो अटमोस्ट कंसर्न होता था, दैट वाज सर्वाइवल, एंड कि हमें कुछ मिल जाए खाने के लिए और हम सर्वाइव करें. एंड देन व्हेन देयर केम अबाउट द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एंड इंसान थोड़ा सा इन फिक्रों से आज़ाद हुआ, तो उसने सोचना शुरू किया, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया. ही वांटेड आंसर्स टू द फिजिकल फिनोमेना, जो ऑब्जर्वेबल दुनिया उसको नज़र आती थी, उसको ये सूरज नज़र आता था, उसको बारिश नज़र आती थी, तो ही यूज्ड टू वंडर कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये क्यों हो रहा है. तो हम ये देखते हैं कि फिर माइथोलॉजी का पीरियड शुरू हुआ, कि इंसानों ने कुछ स्टोरीज, अपनी इमेजिनेशन से कुछ स्टोरीज क्रिएट की कि ओके, देयर मस्ट बी सम पावरफुल फोर्सेस अप देयर, सम गॉड्स अप देयर हु आर कंट्रोलिंग दिस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देन वी सी के इन चीज़ों को वर्शिप भी किया गया, सूरज को वर्शिप किया गया, चांद को, बिकॉज जो चीज़ आपको पावरफुल लग रही है, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, फिर इंसान ने उसी को उससे बचाव के लिए या उससे फ़ायदा लेने के लिए इंसान ने उसी को वर्शिप किया, उसी को खुदा समझा. इस तरह ग्रीक माइथोलॉजी इवॉल्व हुई, हिंदू माइथोलॉजी है, देन देयर इज इजिप्शियन माइथोलॉजी, एंड देन वी सी दैट लेटर एज मैन इवॉल्व्ड इंटेलेक्चुअली, हमें ये नज़र आया कि उसने अपनी अकल को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको शऊर ज़्यादा आया, और उसने फिर ये इस दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी अकल को इस्तेमाल किया. एंड देन वी सी हाउ फिलोसफी डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड, एंड वी आर ऑल फेमिलियर विद द ग्रेट नेम्स, चाहे हम उनकी फिलोसफीज़ को हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो. हु डजंट नो सोक्रेटिस एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल. आई मीन उनके ख्यालात और उनकी बातें, दे हैव लेफ्ट ह्यूज इम्पैक्ट on humanity as a whole. And then उसके बाद और बहुत thinkers आए, philosophers आए, revolutionaries आए. So and then we see कि with the passage of time philosophy and intellect का जो इस्तेमाल था, हम देखते हैं कि फिर that led to the development of the scientific method. And the scientific method is a huge blessing. I mean, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी कहाँ हम पत्थर रगड़ के आग जलाते थे, I mean our ancestors, and अब हम कहाँ हैं. अब आप देखें ना कि at the click of a button we have access to information. If there's an information explosion, so we see that the scientific method developed. अच्छा, अब हमने ये establish कर लिया कि इंसान ने basically in man's search for truth, इंसान ने 3 sources या methodologies adopt की, ठीक है. So this is man's fundamental questions concerning himself, the universe and metaphysics. To answer, this is what religion is there to answer. ठीक है? And then religion, philosophy and science as the 3 major sources of knowledge. So हम ये देखते हैं कि there are 3 methods या let's say 3 sources of knowledge. अगर broadly हम देखें, one is intellect या reason, यानी हमारी अकल, हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, और फिर that's what the philosophers did. But they only used intellect, and they denied any other source. They did not accept the other methods. And then there is observation and experiment, where मतलब आप जो observable दुनिया है उसको आप study करें और उस पर आप experiment करें
कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, अच्छा इसको देखते हैं ये क्या है, तो आप उसको टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें, एंड देन यू एस्टैब्लिश सर्टन लॉज. According to Bertrand Russell, one of the great philosophers, science is an effort to discover something, the basis of which is the result of observation, especially facts related to this material world and the natural laws. So science is basically discovering natural laws and to understand this physical world. And अच्छा, अब जो थर्ड सोर्स हमें नज़र आता है कि जिसमें इंसानों ने रिलाई किया to understand or to give meaning to this life is revelation, and the scriptures and religion relies on this. अच्छा, अब religious authorities या जो religious people वो इसको identify करते हैं as a separate source, और हम सबका अकीदा as Muslims कि ये इंटेलेक्ट और ऑब्जर्वेशन से अलग चीज़ है, ठीक है ना. यानी आप एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ना आप अपनी 5 सेंसेस से वेरीफाई कर सकते हैं, ना आप उसे किसी लैब में उसको टेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा एक खुदा है तो वो ऐसा है, उसकी शक्ल सूरत ऐसी है. इसी तरह आप अपनी अकल से भी वो चीज़ नहीं समझ सकते. एंड दिस इज़ कॉल्ड द रिलीजियस एक्सपीरियंस. रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है कि एक इंसान बहुत सोच विचार कर रहा है, ही इज़ इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, एंड बट ही हैज़ नॉट ना उसने कोई साइंटिफिक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, ना उसने कोई खोज उस तरह की लगाई, बट वो सच की तलाश में है और उसको खुद ब खुद उसके सामने आया हो गया. ही हैज़ मेड कनेक्शन विद द डिवाइन एंड द ट्रूथ हैज़ रिवील्ड इटसेल्फ टू हिम. दिस इज़ द रिलीजियस एक्सपीरियंस जिसको हम वही कहते हैं, ठीक है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इमेजिन कर लें, गारे हिरा में जो उनके साथ हुआ वो क्या था, वो रिलीजियस एक्सपीरियंस था. एंड इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स एंड वट एवर वी नो, दैट्स अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस. और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, या सिर्फ एज मुस्लिम्स हम कुरान में पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट या फिनोमिना एग्जिस्ट करता है तमाम रिलीजन्स में, डिवाइन रिलीजन्स में, जिसमें ज्ञान का वर्ड यूज हुआ है, मोकश, क्योलिया, आई मीन दे गिव इट डिफरेंट नेम्स, बट द एक्सपीरियंस इज इनहेरेंटली बेसिकली लाइक वही, ठीक है. अच्छा, अब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया, ये 3 मेथड्स हैं. कैन वी अराइव एट दीज आंसर्स, जो हमारे सवालात थे जिससे पहले हम जिन पे बात कर रहे थे, क्या हमें उन सवालों के जवाबात मिल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग आवर इंटेलेक्ट एंड नॉट रिफरिंग टू द अदर मेथड्स, और जस्ट बाय द साइंटिफिक मेथड कैन वी फाइंड मीनिंग, कैन वी डिस्कवर द पर्पस? सम पीपल माइट से यस. ओके, सो philosophers have attempted, and okay, before I go there, you see, in my opinion, I may be wrong totally, but I feel that one cannot find answers to all these questions using just one method, because each method has its limitations, and it has in सबकी अपनी domain है, ठीक है ना. Science जो है, what is science dealing with? It's dealing with things which you can verify through your 5 senses, ठीक है. इंटेलेक्ट, अगर हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो उसमें फिर आप सिर्फ अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिमिटेशंस तो आ गई. अब इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 16th and 17th century साइंस जो है वो चर्च से आज़ाद हुई. उससे पहले क्या था कि चर्च जो है वो, अगर आप में, आई एम श्योर यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस, कि कोई अगर साइंस में कोई रिसर्च कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो वो दे वुड डिक्लेयर देम टू बी हेरेटिक्स, और उनको जला भी दिया जाता था, विचेस डिक्लेयर कर दिया जाता था औरतों को. तो साइंस जब साइंस थोड़ी चर्च से लिबरेट हुई, तो साइंस हमें नज़र आता है कि बहुत एरोगेंट हो गई, एंड साइंस बिगैन टू क्लेम दैट इट कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एंड दे सेड कि देयर इज नो गॉड, वी डोंट नीड गॉड, कोई खुदा नहीं है. वी हैव अंडरस्टूड what there is to understand, we've discovered all the natural phenomena, हमें समझ आ गई ये दुनिया क्या है, खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है. उस वक्त ज़रूरत थी जब समझ नहीं आता था. and there are several quotations of philosophers जो ये कहते हैं.
एंड देन ये सारी चीज़ों को रिलीजियस बिलीफ्स को फैलेसी, मिथ, सुपरस्टिशन, तवाहुमात कह दिया गया कि ये तो सब तवाहुमात हैं। साइंटिफिक मेथड से आओ तो बात समझ आती है कि वही एक सही अप्रोच है। बट देन वी सी कि जब एज वी एंटर द 20th सेंचुरी, साइंस के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एंड साइंस ने ये डिस्कवर किया कि उसकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। एंड देन वी सी दैट साइंस बिकेम हम्बल। साइंटिस्ट बिगैन टू एडमिट दैट देयर एग्जिस्ट सेवरल क्वेश्चंस जो कि उसके डोमेन से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एरिया नहीं है, हो सकता है कोई खुदा हो सकता है ना हो, बट इट इज़ नॉट फॉर अस टू से, बिकॉज हमारा जो मेथड है वी ओनली डील विद व्हाट वी कैन वेरीफाई विद आवर सेंसेस। तो ये हमारा डोमेन नहीं है। तो अब अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करें तो हमें ये समझ आता है, आई एम गोइंग टू कोट मुफ्ती तकी उस्मानी फ्रॉम हिज बुक उलूमुल कुरान, वेयर ही सेज कि ये तीनों ज़राए इल्म पर जब बहस की जाती है तो आई एम कोटिंग हिम नाउ, इल्म के इन तीनों ज़राए में तरतीब कुछ ऐसी है कि हर एक की एक ख़ास हद और मखसूस दायरा कार है जिसके आगे वो काम नहीं देता। ठीक है, यानी यू कैन हैव ऑप्टिकल इल्यूजन्स, समटाइम्स यू सी समथिंग एंड वो लगता है कि करीब है लेकिन वो असल में दूर होती है। तो सेंसेस की लिमिटेशंस भी हैं। तो इसी तरह इन तीनों वी एस्टैब्लिश्ड के इन दोनों मेथड्स की लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, सो डोंट बी शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, कि क्या वही और मजहब की भी कुछ हदूद हैं, कि रिलीजन जो है उसकी कोई लिमिटेशंस हैं, या रिलीजन से हमने हर चीज़ को साबित करना है? यानी रिलीजन में तो साइंस भी है, रिलीजन में तो हर चीज़ है, तो रिलीजन में ज़ाहिर है खुदा का कलाम है तो उसमें तो हर चीज़ होनी चाहिए, सारे सवाल के जवाब होने चाहिए ना। तो एज ए मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान के, हमारा क्या अकीदा है कि ये जो कलाम है खुदा का, ये उस हस्ती का मैसेज है हु इज़ ऑल नोइंग, अल्लामुल गुयूब है, जो आलिमुल गैबी व शहादा, हु इज़ नोर ऑफ द सीन एंड द अनसीन। एंड वो अगर चाहे, वो चाहता तो वो वही के ज़रिए उन सारे सवालात के जवाब दे सकता था जिनका जवाब साइंस और फ़लसफ़ा डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन उस खुदा ने इंसान को अकल दी, एंड अकल जैसी अजीम नेमत दी, फिर उसको ऑब्जर्वेशन दिया, उसको ये सारी एबिलिटीज़ दी, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एंड देन ही डेवलप दिस मेथड कि जिनसे इस मेथड से और अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसने नई नई डिस्कवरीज की और उसने नई नई चीज़ें क्रिएट की। ह्यूमन बींग्स कैन क्रिएट। तो अल्लाह ताला की जो नोन क्रिएशन है उसमें इंसान ही है वो क्रिएशन जिसके अंदर ये सलाहियतें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। द ब्रेन इज़ वेरी डेवलप्ड। सो दिस वॉज नॉट गॉड्स प्लान टू टेल अस हाउ टू बिल्ड अ हाउस. See, you did a 5-year degree to understand, to figure out how to build a house. ठीक है? So, and you figured it out. ठीक है ना? अब आप बना रही है ना घर, so you figured it out. तो अल्लाह ने ये ability रखी है और सबको different abilities दी. ठीक है? तो इंसान इसी तरह दुनिया को develop कर रहे हैं, उसको beautify कर रहे हैं, फ़ायदे की चीज़ें बना रहे हैं इंसानों के लिए. तो this was not the plan. The plan in sending a message to humanity was to give him guidance concerning what? It was to give him guidance concerning those crucial questions, and that is the domain of religion. ठीक है? अगर हम इन चीज़ों को इस तरह समझ लें तो बहुत सी confusion दूर हो जाएगी और बहुत सी बातें जो हम सोचते हैं ना कि साइंस ने तो अब डिस्कवर किया है, तो कुरान में तो 1400 साल पहले लिखा हुआ था. भाई कुरान इसके लिए नाजिल ही नहीं किया गया. The purpose of revelation is what? What is the purpose of revelation? जो अनदेखी दुनिया है, जो गैब है, आखिरत का मामला, उसके लिए रिलीजन. Yes, and जिस तरह दुनिया के मामलात के लिए अकल दी. बिल्कुल. To understand what it means to be a good human being, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, मॉरल बाउंड्रीज क्या है. ठीक है? अब रिलीजन की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. It's interesting because it gives you different shades of meaning and it enriches the understanding.
So according to Edward B. Tyler in his book Primitive Culture, he says religion is the belief in spiritual beings. Then we see William James, he writes in his book The Varieties of Religious Experience, that religion is the feelings, acts and experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider divine. Then again, according to James G. Fraser, religion is a belief in a power superior to man, which is believed to direct and control the course and nature of human life. Then we have the sociologist Steve Bruce. He writes in his book Religion in the Modern World, From Cathedrals to Cults. Religion then consists of beliefs, actions and institutions which assume the existence of supernatural entities with powers of action or impersonal powers or processes possessed of moral purpose. Immanuel Kant, the very famous German philosopher, I'm quoting him here, he says, religion is considered subjectively the recognition of all our duties as divine commands. Isn't this interesting? This is a person who's a philosopher. Then there is James Luber. He says, having such faith in a sacred, supreme and unseen being which motivates one with love and fear and to obey that being. So, हमने पहले बात की थी about religion as having the religion की जो base है वो क्या है? अब इससे हम यही हम sum up कर सकते हैं कि it's to have faith in one or more supreme beings, ठीक है, which have created us, and then you have loyalty and love towards that being. Okay, so it again, like I said before, it gives us answers to the purpose of the creation of the universe. अच्छा, अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली फिलोसफर्स ने अपनी अकल के थ्रू खुदा की ज़ात को प्रूव करने की एफर्ट की है. एंड यू माइट बी फेमिलियर, देयर इज दिस कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या कॉजल आर्गुमेंट की कॉज एंड इफेक्ट. इफ देयर इज समथिंग दैट इट मस्ट हैव अ कॉज, एंड देन व्हेन यू गो बैक यू हैव टू स्टॉप एट द फर्स्ट कॉज, यानी कि खुदा का कोई कॉज नहीं है. तो इंटेलेक्चुअली या रैशनली उन्होंने खुदा की ज़ात को इससे प्रूव किया, एंड दिस माइट बी सैटिस्फैक्टरी फॉर सम पीपल, एंड इट माइट एंड देयर आर अपोजिंग आर्गुमेंट्स एज वेल, बाय द वे, व्हिच कैन रिफ्यूट दिस आर्गुमेंट. इसी तरह एक डिज़ाइन आर्गुमेंट है कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं इस दुनिया को, आप इसमें जो ऑर्डर देखते हैं, इसमें जो आप यू सी द ऑर्गेनाइजेशन, यू सी the biodiversity, how everything is connected, how everything is purposeful, you are then convinced that there is a designer, there is a great designer who has designed this universe. And then there is the ontological argument, जिसमें कि basically ये बात है कि अगर एक चीज़ का concept exist करता है इंसानों के जहनों में, यानी हमारे जहन में एक divine being, एक perfect being का concept है, और बहुत से philosophers ने इस पर बात की है. Plato has talked about it. So वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो वो ये कहते हैं, वो फलसफी ये कहते हैं कि वो इस बात का सबूत है कि वो बीइंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है. एंड देन देयर इज अ मॉरल आर्गुमेंट कि इंसान अपने अंदर मॉरली करप्शन देखता है, वीकनेसेस देखता है, तो इंसान ये जानना चाहता है कि वो कौन सा वो इखलाक है या वो कौन सा मॉडल है जो मेरे लिए परफेक्ट हो, जिससे मैं टू एस्पायर टू. एंड तो ये भी एक सबूत है इस चीज़ का कि अगर एक हमारे जहन में एक परफेक्ट बीइंग या एक परफेक्ट मॉरल बीइंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है कि वो ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी और वो खुदा की ज़ात है. जिस तरह सूफिया कराम एक हदीस को बहुत कोट करते हैं, तखल्लकू बि अखलाक़िल्लाह, यानी कि अपने अखलाक को खुदा के अखलाक पे मॉडल करो. यानी अगर खुदा रहमान है, रहीम है, तो अपने अंदर रहम पैदा करो. मॉडल योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट परफेक्ट बीइंग, और एटलीस्ट स्ट्राइव टू डू दैट. ठीक है, तो अब आर देयर एनी क्वेश्चंस? प्लीज फील फ्री टू कमेंट और क्वेश्चन. ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट इट. So now we have concluded that there are questions.
that are beyond the domain of science and intellect. अच्छा, अब हम तो बिलीव करते हैं रिलीजियस एक्सपीरियंस पे और वहीं पे हमारा तो पूरा पक्का ईमान है, लेकिन साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स, many of them, I'm not saying all of them, but many of them might deny this source. They will say कि ऐसी कोई सोर्स नहीं है कि एक इंसान जो है उसके पास एक फरिश्ता आया और उसके कान में उसने मैसेजेस दिए या उसके दिल पे इल्का कर दिया और वो खुदा का कलाम है. हम क्यों माने? हाउ कैन वी वेरीफाई दिस? तो इसको समझने के लिए अगर एक इंसान ये समझ जाए कि यू आर ऑल फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन, राइट? इंट्यूशन या जिसको हम विजदान या इल्हाम कहते हैं या सिक्स सेंस या गट फीलिंग. Have all of you experienced something similar to that? Right? I mean, all of us sometimes in our lives have experienced कभी ना कभी. एंड क्या वो सही साबित होता है, वो ख्याल या वो फीलिंग? वो सही होता है, ठीक है. अच्छा, उसके लिए आपने कोई ज़ाहिरी उसका जरिया नहीं होता. उसका कोई ज़ाहिरी जरिया नहीं होता. जज़ाकल्लाह, वेरी नाइसली सेड. उसका कोई ज़ाहिरी जरिया नहीं है. यू हैव नॉट रेड इट इन अ बुक, you have not done any research on it. वो एक ख्याल है जो आपके जहन में आ जाता है, ठीक है. तो ये so this is something which cannot be denied. Even though people disagree or deny that there is such a thing as intuition, वो कहते हैं कुछ नहीं है ये, but क्योंकि इतने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, some people even have prophetic dreams, ठीक है. अच्छा, by the way, कुरान में भी अगर हम देखें, कुरान पाक में सूरह ताहा में उम्मे मूसा का जो किस्सा है where she is fearing for her child's life and she is very scared कि उनको मार दिया जाएगा because वो सब मेल्स को वो कत्ल करवा रहा था. तो आयत नंबर 38 में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इद औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जबकि हमने तुम्हारी माँ को वो बात इल्हाम की. ये अल्लाह ताला हजरत मूसा से बात कर रहे हैं कि हमने तुम्हारी माँ को वो बात इल्हाम की जो इल्हाम ही किए जाने के काबिल थी. And then the next ayat he says, अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़यल्क़िहिल यम्मि बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी व लितुस्ना अला ऐनी. ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखो, फिर उसे दरिया में डाल दो, फिर दरिया उन्हें किनारे ले आएगा, तो उन्हें वो यानी वो पकड़ेगा जो मेरा भी दुश्मन है और उनका भी दुश्मन है, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से मोहब्बत का असर डाल दिया था और ताकि तुमको मेरी खास निगरानी में परवरिश किया जाए. दैट फीलिंग दैट हजरत मूसा की जो वालदा को जो फीलिंग आई, यहाँ पे तो कहा गया कि वही की तरह थी वो, बट द पॉइंट इज कि इट वॉज नॉट वही बिकॉज इट वॉज अ फीलिंग इन हर हार्ट. And it was such a strong feeling that she believed it. She believed that this was the only way her child's life could be saved. And she acted upon it. She immediately acted upon it, as if she knew that this is the truth. ठीक है? So that gut feeling or that instinct can be very strong. ठीक है? तो ये अब अगर हम इस पे थोड़ी बात कर लें कि इंट्यूशन क्या चीज़ है ये. अगर हम इस इंट्यूशन के फिनोमेना को थोड़ा सा समझते हैं या हम उसको एक्सपीरियंस कभी करते हैं, तो टू सम एक्सटेंट हम ये समझ सकते हैं कि वही क्या होगी. यानी वही क्या है? एकदम से किसी रियलिटी का आपके सामने आया हो जाना, एकदम से रियलिटी का बेनकाब हो जाना आपके सामने, एंड देन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गई एक कॉन्सेप्ट की. तो इंट्यूशन ऑफ कोर्स टू अ मच लेसर डिग्री इज समथिंग लाइक दैट. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी, तो intuition is defined as immediate awareness either of the truth of some proposition or of an object of apprehension such as a concept. यानी एक concept का समझ में आ जाना आपको. Awareness of the passage of time or of the ineffable nature of God. They have equally been claimed as intuitions. तो बेसिकली ये वो कुव्वत है. ये उर्दू लुगत की छपी हुई एक उर्दू डिक्शनरी है. इसमें जो विजदान की तारीफ है वो क्या है? कुव्वत या हिस्स जो गैबी हकायक के इदराक का जरिया होती है, हवा से खमसा या अकल की मदद के बगैर. ठीक है? यू आर नॉट यूजिंग योर 5 सेंसेस और योर इंटेलेक्ट फॉर दिस.
किसी चीज़ को आपने देख या जान लेने की सलाहियत पैदा हो गई. इट्स एज इफ यू सीन इट और एज इफ यू नो. ठीक है. छठी हिस्स, कश्फ, इल्हाम, इल्का, इशराक, के सब इसके डिफरेंट नाम हैं. सो are you making the connection? Did you get what I'm saying? That this is basically to understand and मौलाना रूमी का भी एक कॉल है कि अगर मेरे ऊपर ये इस तरह इल्हाम और ये कश्फ ही ना होता मेरे ऊपर, तो मैं ये नहीं समझ सकता था कि पैगंबर का जो एक्सपीरियंस था वही का वो क्या था. और जिस तरह एक हदीस में आता है ना कि जो सच्चे ख्वाब हैं वो नबूवत का 40वां हिस्सा है. So it gives you an idea or an understanding of what that experience must have been like. So, but then are we saying that intuition is when we have a sixth sense? Right. So we're linking with some kind of a. So there is a power or something like. Why not? It's an independent God's connection. guidance, I guess. Of course, bilkul, absolutely. I mean, you can if you want to. No, or we just saying कि हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. But it will also be wrong. Yes, so I was coming to that. But this Very is good. Yes. So this is sixth sense is always very strong. I mean, you've got. It's very strong, but she's right. It can be wrong also. And see, wahi में ये गुंजाइश नहीं है. Wahi cannot be wrong. Wahi is 100%. Yeah, I mean that is our belief, right, as Muslims. But intuition can be wrong, and it is not something for you to preach to others. कि अब मुझे ये हो गया है, कश्फ या इल्हाम हो गया, अब तुम लोग सब यही करो. ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है. बट वही में तो मैसेंजर को बताया जाता है कि अब तुमने बताना है सबको. अब तुमने But if you do that, then you're really misguiding people. It's your own personal. Absolutely. You can follow, but you can't tell others. Absolutely, absolutely, very nice, thank you. इल्हाम का तजर्बा तो गैर मुस्लिम्स को भी होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. अब जो रिलीजियस व्यू है हमारा, would anyone like to comment? कुछ कहना चाहेंगे आप? फरा, you're so quiet. आंटी आप कुछ कहेंगी? आपसे बात करेंगे. सो नाइस टू सी यू. जैसे रिलीजन में दो है ना, एक रिचुअल्स का, एक स्पिरिचुअलिटी का. जी जी जी. सारे रिलीजन्स की स्पिरिचुअलिटी जो है बीइंग लेवल पे लव. यस, राइट, बिल्कुल. आई एम कमिंग टू दैट. Sorry, so I now have a question. So are you saying that intuition is actually love and a connection? I think she's talking about something else. She's talking about religions in general. Intuition is something else, right? We've just established that. So can you get a message in your dream, like can you have a feeling in your dream, and can it be true? Like It can be. and I don't know whether they're real or they're like, you know. I mean, it can be, but like she said, it's not. I mean, 100%. It can be or it can't be. Is there a message through your dream, like certain messages? हो सकता है, but जरूरी नहीं है. It's not I think 100%. it can go into a separate independent discussion. Like sometimes when you really want to believe something, then you interpret that as a sixth. बिल्कुल, of course. So that can be like a grey area. This is wish fulfillment dreams, according to Freud's theory. जो psychology में That's जो another very confusing dialect to follow. But Absolutely. because No, of my point here was, let me clarify. My point here was कि हमने जब ये establish किया कि ये 3 sources हैं knowledge की, तो एक ये source जिसको intuition कहा जाता है, इसको भी बहुत से लोग अब मानते हैं कि ये भी एक source of knowledge हो सकता है, because कई दफ़ा वो gut feeling, like I said, वो सही होती है, वो इतनी strong होती है, तो उसको एक source of knowledge के तौर पे कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते. ठीक है ना? So that was the only point I was trying to make. Now we see that अल्लाह का जो प्लान था, अल्लाह ने इंसानों से, अल्लाह ताला ने पहले इंसान को क्रिएट किया, जो रिलीजियस व्यू है, जो हमारा मर्द और औरत को क्रिएट किया, उनसे कलाम किया, फिर उनको जन्नत से निकाल दिया. उसके बाद उनको कहा कि गाइडेंस में भेजूंगा तुम्हें अपने चोजन मैसेंजर्स के थ्रू, एंड उस गाइडेंस को फॉलो करो, तो यू विल बी, फिर तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं. सूरह बकरा की आयत 38 है. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. हमने हुक्म दिया कि तुम सब इससे नीचे उतर जाओ जन्नत से, फिर अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे, तो जो कोई पैरवी करेगा मेरी हिदायत की,
सो उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे. सो गॉड हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस गाइडेंस ऑफ आवर्स. अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इंसानों को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, यानी हर क्रिएशन. यस, in this ayat, does this ayat, categorically says that I'll send messengers for the deliverance of the message? No, not this ayat. It doesn't talk about the messengers, but there are other ayat जिनमें ये बात मेंशन की गई है. हाँ, इस आयत में तो नहीं है, इस आयत में ये वर्ड्स नहीं है. तो यानी खुदा ने यानी ये कहा है, कुरान पाक में हमें कुछ ऐसी आयत भी मिलती हैं जहाँ अल्लाह ताला ने यानी अपनी बाकी क्रिएशन के हवाले से भी ये बात की कि जिस क्रिएशन को भी मैं पैदा करता हूँ, उसको डिज़ाइन करता हूँ, उसको मैं उसका मकसद भी उसके अंदर मैं वदियत कर देता हूँ. यानी उसकी जो ज़िंदगी का मकसद है वो भी उस क्रिएशन को इंस्टिंक्टिवली पता है. मसलन जो वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट आयत जो सूरह नहल की आयत है, जिसमें कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को कहा कि उसको वही की गई कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट आर यू क्रिएटेड फॉर, टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड देन टू मेक दैट हनी फॉर ह्यूमैनिटी. आई मीन दैट्स डिबेटेबल. तो यानी कि अल्लाह ताला ने जिस क्रिएशन को भी पैदा किया, और ये बहुत सी आयतें हैं, सूरह आला की आयत है अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने खल्क़ किया फिर ठीक ठीक बनाया, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और जिसने अंदाज़ा दिया फिर राह बतलाई. फिर सूरह लैल की आयत नंबर 12 है इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे ही ज़िम्मे राह बताना है. फिर इसी तरह सूरह ताहा की एक आयत है जिसमें हज़रत मूसा का डायलॉग है फ़िरौन के साथ, where Fir'aun is asking हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम about God कि तुम्हारा खुदा कैसा है. तो हज़रत मूसा का जवाब है क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा. हज़रत मूसा फरमाते हैं कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को उसकी बनावट अता की, फिर उसकी रहनुमाई भी की. यानी चीज़ों को ऐसे ही बना के नहीं छोड़ दिया कि जैसे हमने डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट में भी बात की थी कि फ़लसफ़ियों ने भी ये ऑब्जर्व किया है, अपनी अपनी अकल से हम ऑब्जर्व करते हैं. तो हर चीज़ जो क्रिएट की गई है उसका कोई पर्पस है. देयर इज़ नो क्रिएशन in this universe or on this planet which is purposeless, right? और उसको उसका पर्पस पता है, वो इंस्टिंक्टिवली अपना पर्पस परफॉर्म यानी वो अपना पर्पस फुलफिल कर रही है. तो इंसानों को उनकी ज़िंदगी का पर्पस अल्लाह ताला ने वही के थ्रू बताया, और अल्लाह ने कहा कि आई हैव टेकन इट अपॉन माई सेल्फ टू गाइड यू एज टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ. एंड सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं he has sent messengers and prophets to all parts of the world. यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसका मैसेज ना पहुंचाओ, बिकॉज दैट वुड नॉट बी फेयर. सूरह फातिर आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर. हम ही ने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाले की हैसियत से, और कोई उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें डराने वाला ना गुजरा हो. और इस तरह की और बहुत सी आयतें हैं. एक सूरह शूरा की आयत भी देख लेते हैं. आयत नंबर 13 शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहम वल्लती अवहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीही कबुर अलल मुश्रिकीना मा तदऊहुम इलै अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब. अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका उसने नूह को हुक्म दिया, और जिसको हमने आपके पास वही किया, और जिसका हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था. यानी ये कि इस दीन को कायम रखना और इसमें तफरका न डालना. तो ये वही दीन है जो शुरू से चला आ रहा है, एंड इट्स द सेम मैसेज एज द कुरान सेज एज वेल. मुशरिकीन पर वो बात बहुत गिरा है जिसकी तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं. अल्लाह अपनी तरफ जिसको चाहे खींच लेता है और अपनी तरफ रसाई देता है हर उस शख्स को जो उसकी तरफ रुजू करे. अच्छा, now when we analyze this guidance, ये जो वही अल्लाह ताला की तरफ से आई है कुरान की फॉर्म में, या जो और स्क्रिप्चर्स आए हैं, पहले हम कुरान की बात नहीं करते, हम सारे रिलीजन्स और हम सारी जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वही आती है या जो गाइडेंस खुदा की तरफ से आती है, it comprises of 4 different branches. Broadly, it comprises of 4 different branches, and these are number 1, it's belief. ठीक है? It's based on a belief system where there is belief in one or more supreme beings. ठीक है?
and there's belief in the messengers and the message from God, and there's the पूरा belief system है जिसको हम ईमानियात कहते हैं. ये let's say कि ये foundation होती है हर religion की, ये किसी भी religion की foundation है. If you believe in that unseen, in that ghaib, फिर वहाँ से फिर बात शुरू होगी. उसके बाद फिर जो second हमें branch नजर आती है is worship. The concept of worship, and you can see that it exists in all religions, where you are showing devotion and love and submission and humility and fear to that supreme being, and you want to obey him. तो कुछ rituals होते हैं जो आप अदा करते हैं और ये हर religion में है. There's a concept of prayer, there's a concept of fasting where you don't eat and drink, and it's discipline, जैसे हमने पहले बात की. अच्छा, then there is the third main branch of all religions is ethics, which is जिसको हम कहते हैं इखलाकियात, कि क्या काम अच्छा है, कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा बिहेवियर बुरा है, और सोसाइटी में यानी क्या चीज़ है जो कि सोसाइटी में अच्छाई को प्रमोट करती है और कौन सी चीज़ है बुराई को प्रमोट करेगी. तो कौन सा बिहेवियर डिजायरेबल है, what kind of a human being we need to aspire to be. तो ये मुझे लगता है कि ये मजहब का जो है क्रक्स है या एथिक्स जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी उनके बारे में जो आयात में उनके जो आने का मकसद बताया गया, उनको भेजने का मकसद ये बताया गया कि वो इंसानों को प्योरीफाई करें, उनके नफ्सों का तज़किया करें. और शाह वलीउल्लाह के मुताबिक रिलीजन का पर्पस है तहजीब नफूस बशरी, यानी इंसान को सिविलाइज्ड बनाना, उसके अंदर को, उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को सिविलाइज्ड करना. एंड देन लास्टली द लास्ट ब्रांच इज द लॉ और द जुरिस्प्रूडेंस विच इज शरीयत. ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ लॉज दिए जाते हैं, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ अहकामात हैं जो लाजमी करने हैं, कुछ अहकामात हैं जो प्रेफर्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली फॉरबिडन हैं. ठीक है, तो देयर वेरियस, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं फिक्र में. तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी कंक्लूडिंग द लेक्चर नाउ. सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इल्हामी किताबें हैं, जो स्क्रिप्चर्स जो आए हैं, ऑल ऑफ देम दे हैव बीन interpreted differently through the ages because it's language, as you know, Faraj always talk about कि it's language, and language जो है उसमें आपको पता है ना, किसी भी लैंग्वेज में गुंजाइश होती है different shades of meaning की. ठीक है ना, और synonyms होते हैं, कई words के एक से कई ज़्यादा meanings होते हैं. मुझे उससे ये समझ आ गया, आपको उससे कुछ और समझ आ गया. तो अब ये डिफरेंसेस हमेशा से रहे हैं और ये हर स्क्रिप्चर की इंटरप्रिटेशन में ये डिफरेंसेस रहे, और इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में हमें नजर आता है कि डिफरेंट सेक्ट्स बन गए. ठीक है ना, कि मुझे अकीदे के बारे में ये समझ आई, आपको थैंक यू सो मच. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि खुदा की ज़ात ऐसी है, तो अब लिहाजा मेरा ये अकीदा हो गया, तो अब मैं इस फिरके में आ गई. ठीक है, अब मुझे खुदा के लॉज के बारे में ये चीज़ समझ आ रही है, तो मेरा आई एम डिफरिंग फ्रॉम यू, सो नाउ अ न्यू सेक्ट इज फॉर्म्ड. इसी तरह वर्शिप के तरीकों में डिफर करना, तो उसमें भी फिर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. तो आप फिर इसका एक लाजमी नतीजा है कि डिफरेंट सेक्ट्स बनेंगे, और इख्तिलाफ होना इट्स ह्यूमन नेचर टू डिफर. यू सी, वी आर ऑल वायर्ड डिफरेंटली, वी हैव डिफरेंट कंडीशनिंग, वी हैव had different experiences in life, so we all think differently, we all perceive things differently. It doesn't mean that there's one person is right and the other person is wrong. Both can be right. जिस तरह वो 6 और 9 की मिसाल हम देते हैं ना, कि 6 यूं है तो आप उसको 6 देख रहे हैं, दूसरा शख्स उसको 9 देख रहे हैं, तो अब यानी उसकी परसेप्शन के मुताबिक तो वो ठीक समझ रहा है, जो उसको जो नजर आ रहा है या जो वो परसीव कर रहा है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है. तो अब ये डिफरेंसेस बुरे नहीं हैं. ठीक है, एंड सेक्ट्स का बनना भी बुरी बात नहीं है. बुरा क्या है? बुरा ये है कि आप जिस सेक्ट को भी बिलोंग करते हैं, जिसको भी आप ठीक समझ रहे हैं, आप उसको जरूर फॉलो करें, एंड यू ओwe it to yourself. If you understand something
टू बी राइट एंड टू बी करेक्ट, एंड आपको लग रहा है कि वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, वो सही अंडरस्टैंडिंग है दीन की, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, बट आप दूसरे को गलत ना समझें। और जो हमारे 4 बड़े इमाम भी गुजरे हैं, उनका भी जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका एटीट्यूड क्या था, कि वो ये कहते थे कि मेरी नज़र में आई कांट रिमेंबर कि किसका कॉल है, बट वन ऑफ द ग्रेट इमाम्स ही सेड कि मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो है ना बात ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है ना। और ये भी कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात, तुम अपनी रिसर्च के मुताबिक तुम्हें मेरी बात गलत लगे, कुरान और हदीस के खिलाफ लगे, मेरी बात को दीवार पे मार देना। सो ही इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट ही इज ह्यूमन एंड ही कैन मेक अ मिस्टेक। सो ही इज सेइंग कि अभी तक जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये सही है। और ये डिफरेंसेस अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो देव एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द सहाबा कराम। सहाबा कराम के ज़माने से उनके डिफरेंसेस थे फिक़्ह के मामलात में। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो उनसे पूछ लिया जाता था। एंड वो फेमस जो वाक़या है अबाउट असर की नमाज के, सहाबा वाज सेंट समवेयर एंड डू यू रिमेंबर? हाँ, तो बता दो। ओके, सहाबा वाज सेंट समवेयर, उनको बोला गया, उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि असर की नमाज वहाँ जाके अदा करनी। उन्होंने इस तरह बोला, कुछ लोगों को ये समझ आया कि वहाँ जाके अदा करनी है और उसमें कज़ा भी हो जाए तो रास्ते में नहीं देना, और कुछ को ये समझ आया कि असर का जहाँ वक्त हो वहाँ असर अदा कर दो। तो कुछ लोगों ने रास्ते में पड़ाव करके असर की नमाज अदा कर दी, और कुछ ने कहा कि नहीं, नबी ने कहा था वहाँ जाके उन्होंने कज़ा करके वहाँ पढ़ी। जब वापस जाके किस्सा ये प्रॉफिट को बताया तो उन्होंने कहा तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। तो ये है इसमें क्योंकि आपने अपने अंदाजे से कहा था कि तुम वहाँ पहुँचोगे तो असर पढ़ लेना, या वहाँ पहुँच जाओगे तो पढ़ लेना, अल्फाज की वजह से। एंड दिस एफर्ट नाउ नमाज पढ़ी गई, हाँ बस पढ़ी गई, बस पहले पढ़ी गई या 2 घंटे बाद पढ़ी गई, नमाज की अदायगी को नहीं मना किया, बस पढ़ी गई। हमारा ये तो चल रहा पढ़ा। बिल्कुल। This effort to understand the text of the Quran, as you all know, is called tafsir, and it's actually a branch of knowledge which has evolved gradually over the years, and now it's become a separate science. ठीक है ना। अब यानी in the days of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam तो ऐसा नहीं था कि कोई तफसीर की क्लास हो रही है, कोई ये क्लास हो रही है। It was all one. It was just one book. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would talk about it. उसी में वो फिक्र भी बता देते थे, उसी में वो सब कुछ, यानी एथिक्स भी, अखलाक भी बता दिया, उसी में सारा कुछ हो गया। अब because of this we're in the day and age of specialization, तो ये सब branches बन गई हैं of knowledge, and they've all evolved and they've become separate sciences. Up till the 2nd and 3rd Hijri, we see that different schools of thought have emerged on the basis of fiqh, and उनके जो आप जब differences आपके आते हैं inferences में, और जो आप derive करते हैं rulings, beliefs में differences आते हैं, and political reasons भी होते हैं differences के। And each school has derived its rulings from Quran and Hadith. Okay? And this was the period when the principles of tafsir were formulated. And inshallah, in the next lecture, we will be discussing, we will be talking about basically an introduction to the Holy Quran. And we will discuss wahi and what wahi is, and linguistically wahi kya hai, or phir, as a term, what it means. तो इंशाल्लाह उसको फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना। Yes, sorry, you have a question? So I'm just looking at the screen, and I want to hear more, if you could, please, about the importance of worship. Of worship, okay. Yes. ठीक है। Let me just conclude the class. Okay. So this is ये मैंने ठीक है ना। So the religious experience, as we spoke about it, के different terms हैं, ठीक है। And then we have ठीक है। So we discussed this as intuition, and then ठीक है। So this was the concluding point. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। Now please feel free to ask. Yes, Farah. So you were talking about. I was looking at the screen and I get belief. Oh, let's go back there. Yeah. Ethics,
and law. Okay. And I'm wondering, looking at the screen, what the immense value or importance of worship is according to Farah. According to me. Yes. Okay. So let's look at the purpose of worship first. Please. ठीक है? Yes, thank you. What we understand, I mean, whatever little I understand from the Quran about the purpose of worship, is that it is a discipline or a tool to help you in your main purpose of life. And what is that main purpose of life, for which the Prophet was also sent, is to purify yourself as a person, to inculcate those good human values and to get rid of those vices which we all know are obviously not right. I mean, to be selfish and to be jealous and all those vices. So the worship is a tool which is meant to you're sort of aligning your thoughts, you're focusing on the purpose of your life 5 times a day. If you're talking about prayer, yeah. Right. So the purpose is formed, or the worship, the act of worship is there because there's belief. Absolutely. The kind of belief Absolutely. will Yeah. give you those actions. Sorry. And Yes. those actions then would give you the ethics, and the ethics would then create a society. Absolutely. That's very well said. Can you say this on the mic, please? Please. No, Please. But with all due respect to everyone in the room, our worship in Muslim countries is not causing that. So then where do you see is the disconnect? Okay, so the disconnect, I think, is wherever we are studying the Quran, or wherever we. And by the way, this is open to anyone who might have some other views. Of course. Wherever there is an understanding of the Quran being given, or unfortunately, what has happened is that, in my humble opinion, I might be wrong, but what I see is that we are highlighting the differences because we are promoting a certain sect and a certain understanding, and when we are highlighting the differences, we are highlighting the petty aspects of religion, which are not important. As in, जो नमाज का जो तरीका है, ठीक है ना, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं which are giving you identity कि okay, we are this group and we are that group, हम इस तरह नमाज पढ़ते हैं और हम इस तरह नमाज पढ़ते हैं और हम रोज़ा इस वक्त खोलते हैं. This is happening across all religions. This is happening across all religions. So then, So your first question. Yes. And if there wasn't religion, Mm-hmm. there wouldn't have been wars, because most wars are fought on the principle of religion. So if we were born, sorry, so you were saying something. Mm-hmm. No, go ahead. Yeah. So worship का जो importance है across the board in the world, where do you see this going in terms of progress of society? Okay, we're worshipping, but it's not really making a difference. Right. So first of all, like you said, worship का जो purpose है, it is to connect you with God. It is a remembrance of God. So Hazrat Musa. With God. It's a conversation with God. Hazrat Musa अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब उनसे conversation की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज establish करो मेरी याद के लिए, ठीक है? So it gives you that connection with the divine being, and it then also reminds you of the purpose of your life, which is that you are answerable to God, like you said very beautifully, that it gives you a reminder of the purpose of your life, and that you have to work on yourself. You have to keep working on yourself as a person, and if you don't have that in mind, okay. So I have let me quote a few ayat जिसमें कि नमाज का पर्पस बताया गया. सूरह माऊन जो है ब्यूटीफुल Right. एग्जांपल ऑफ इट है Yeah. कि अगर आप नमाज पढ़ भी रहे हो तो उसका क्या मकसद क्या है, बिल्कुल. if you're not achieving that मकसद then this namaz is useless for you. बिल्कुल. So Food basically, for your soul, basically. yeah. Namaz is like a food for your soul. Yeah, But everyone feels that. No, if you don't feel, It's like सूरह माऊन में ये सारा clearly अल्लाह ताला ने बोला है कि if you're not achieving, if you're not getting to that point कि आप नमाज पढ़ रहे हो लेकिन आप यतीम को धक्के दे रहे हो, या आप मस्कीन को खाना नहीं खिला रहे, या you don't have, you're still selfish, you're still greedy,
then Allah Ta'ala has very clearly spelled it कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नमाज, and this namaz is tabahi for you. This namaz has no fayda. You're not gaining anything out of So it. is the purpose of namaz to expand your love for people? Yes. Because Allah Ta'ala will only love you if you love His creation. And to create sensitivity for the less Exactly. privileged. अच्छा फरा there's सूरह मारिज है which is आयत सूरह नंबर 70, उसमें हम देखते हैं आयत नंबर 19 से मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ. It gives me a good idea sometimes when I read this कि इन्नल इंसान खुलिक़ हुलुआ, इंसान बेहिम्मत पैदा हुआ है. यानी इंसान जल्दबाज है. इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको तकलीफ पहुंचती है बहुत कंप्लेन करता है. व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसे खुशहाली मिलती है तो स्टिंजी हो जाता है, बुखल करने लगता है. और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्लल मुसल्लीन, एक्सेप्ट फॉर द वर्शिपर्स. हाँ, अलबत्ता वो नमाजी अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो इस हुक्म में दाखिल नहीं जो अपनी नमाज में बराबर लगे रहते हैं. यानी वो उनकी जो नमाज है ना, इट स्टेज विद देम आउटसाइड द प्रेयर ऑल्सो. यानी वो कॉन्स्टेंटली नमाज की स्टेट में है, गॉड की रिमेम्बरेंस में है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ याद रखे हुए हैं. हम नमाज को एज ए रिचुअल अदा करके एंड वी आर डन विद इट, एंड आफ्टर दैट वी डोंट, हमें तो याद भी नहीं है, हमने बस वो वर्ड्स अदा किए, हमने वो एक्शंस पढ़े, हमें लगा कि ओके मैंने सजदा ठीक किया था, मैंने दुआ सही पढ़ी, मेरी तजवीद ठीक थी, यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा. बट वेयर वाज द स्पिरिट, उसकी रूह कहाँ है? So the spirit is to grow your heart. Is to grow your heart. By the way, scientifically, recently, Mhm. sorry. No, you finish and then I can. They've scientifically, doctors have now actually measured the energy that comes out of a human being. Mhm. You physically see the distance at which, so a more loving and happy person emanates energy that reaches far beyond and attracts people towards you, and a depressed person's energy is less and attracts less human beings towards them. Absolutely. So people who are depressed are in a vicious cycle of depression because their energy is decreased, and then they don't get to love more because they're not receiving love. So it's like I like what you just said. It is the expansion of the heart. So I got my answer. But thank you. आप कुछ बोलना चाहें? मैं ये कह रही थी कि I agree with her, but you will see that they are around the world. You see people who say prayers and are totally doing the wrong things. I mean, it's in the Muslim world. बिल्कुल. And there you find people who are not Muslims and are leading an honest life, do good deeds. बिल्कुल. So you know there is a difference. We say अच्छा जी नमाज पढ़ते हैं, but वो नमाज तो खाली है. And my second question is, a Muslim is a person who totally submits to Allah. So any other person who submits to Allah is also a Muslim. Well, you can't say कि जी Christian तो Muslim नहीं है. But I think we are all Muslims if you believe in Tawheed, in submission to Allah. So I just find, in my experience, that what sort of Muslims are we? There's killing, there's everything wrong, but नमाज का टाइम हुआ तो अजान ही सजदा कर. जी, बिकॉज यू सी जैसे अभी हमने बात की, जो फरा का जो क्वेश्चन था, अगर आप इन 4 ब्रांचेस में अगर आप गौर करें तो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है उस शरीयत के ऊपर, उस लॉ के ऊपर, ठीक है. और वर्शिप का भी स्पिरिट नहीं, वर्शिप के सिर्फ जो आउटवर्ड रिचुअल्स हैं और उसकी जो अदायगी का तरीका है, दैट इज आवर फोकस. We are focusing on the very external and let's say petty matters, और उसको हमने क्या बना दिया? पूरा दीन बना दिया. हमारे लिए पूरा दीन वही है. इखलाक को तो हमने कहीं साइड पे फेंक दिया उठा के, और ईमान का तो पता नहीं क्या हाल है. So मुझे लगता है कि लॉज में भी वी आर लुकिंग फॉर लकूनास, वी लुकिंग फॉर यू नो कि कहीं से हमें कोई लूपहोल ऐसा मिले कि वी कैन, जहाँ हमारी मर्जी हो रही है एक्चुअली. हाँ, killing in the name of religion. Yes. This is our duty. I mean, हमने मार देना, मुसलमान नहीं, हम उसको मार देना. बिल्कुल. That whole concept
बिकॉज रिलीजन का जो पर्पस था, जो हम बात कर रहे थे, इट ऑल्सो केम, मेरे ख्याल से कि इट वॉज सेंट बाय गॉड, और कुरान में भी आता है कि वो आपके बोझ उतारने के लिए आया था, आपको यूनाइट करने के लिए आया था, मोहब्बत पैदा करने के लिए आया था, लाइक यू वर सेइंग, टू डेवलप दैट लव एंड दैट कि इंसान सब बराबर हैं, ये बताने के लिए आए। और हर रिलीजन यही कहता है, हमने उसको अपनी शनाख्त और अपनी प्राइड और उसका जरिया बना वो लिया। नजर को नहीं आता। जी, यू वर सेइंग समथिंग? Sorry, I'm late and I just. No, talking, but I lovely think seeing you. Yeah, thank you so much, likewise. But I think the people are talking about namaz and the connection and all. So, like we all are in search of God, in search of purpose of life. Absolutely. Why are we here? What is our existence? What does it mean? We were just born and one day we'll grow up and do our, duties and die. That's whatever I've understood of namaz. Up till now, in my little bit struggle of being, it is nothing but connection. It is when you love somebody, you connect to that person. जैसे कोई बुजुर्ग है या माँ है या कोई दोस्त है जिसके पास आप जाते हैं अपना दिल का हाल करने, अपना मिलने, तो वो दोस्त को भी आप याद रहते हैं और आपको भी वो दोस्त याद रहता है। तकलीफ में या खुशी में आप किसके पास जाते हैं, जिससे आप कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। Namaz is the connection with the being, because he loves you and you love him. Absolutely. It is nothing. आप अपनी तकलीफ में भी जाते हैं मुसल्ले पे और आप पढ़ रहे होते हैं दुआएं, मगर दिल आपका रो रहा होता है किसी और चीज पे, तो you are communicating your तकलीफ, your परेशानी to that being who is capable of doing everything, and he knows that